CPC has always been a code which has been looked at with a lot of pride by the courts. Everybody thought that CPC is something that cannot be touched, that should not be touched. But ironically, from 1909 till 2001, Lahore High Court in its wisdom introduced various amendments. And those amendments, of course, were the powers given to the Lahore High Court under Section 122 of the CPC. So when this Rules Committee was formed, the Rules Committee in which I was a member, the task given to us was to ensure that somehow the process of trial should be expedited. So it was with the view of achieving the goal that we examined the code. And one thing that we found was that, in fact, code does not really need that much of amendments. All it needs is that the proper procedure in the code should be understood and implemented by the honorable judges. So we did our research, we sought statistics from the Lahore High Court's office, and we found that a lot of provisions which were actually meant to be implemented were altogether ignored and were not being considered by the honorable judges. So what we did was we simply made those procedures mandatory. There is no drastic change in the code as is being told, as is being sort of agitated, and we will start with that. But the whole idea that I had in mind, and the Rules Committee for that matter had in mind, was that firstly, what should we do to avoid wastage of time? Number two, what can be done to get the courts to be more proactive and to ensure that the lawyers are participating in the whole process. It is with this background that I take you to the amendments. And I wish there was a CPC with you people, but anyway, we will start with Order 1. I believe all of you must be knowing that Order 1, Rule 11 already provided for entrustment of the conduct of the suit to one of the parties. Why this was not being practiced is not known. I am sure that in the earlier parts of the civil litigation this might have been implemented. The idea was that where there are more than one plaintiffs and similarly there are more than one defendants, either one of them should be entrusted with the task to conduct the suit so that the time is saved. And we've been doing that inadvertently. आप मुद्दई में यकेज़ मुद्दईयान का बयान लिखते हैं, यकेज़ मुद्दईयान का बयान लिखते हैं, ये actually it is in tacit obedience to the provisions of Order 1, Rule 11. तो वो आप क्यों करते थे ये शायद इस पर गौर नहीं किया जा रहा था. So what we have done is we have made it mandatory so that we can save time on this. वरना मुद्दा नंबर 1 की एविडेंस आएगी, फिर डिफेंडेंट नंबर 2 की एविडेंस आएगी. Why should we do that? If the defense is common or similar to all, then the proceeding must be given to one. Similarly, Order 2 was amended in two ways. Firstly, we brought about provisions of Rule 6A, and as you know that there was no provision in the code for consolidation of suits, and this was being done either by the honorable district judges in their inherent powers or by the High Court. And this actually made no sense, because if a judge is seized of two suits in which common questions are to be tried, then he should have had the power to consolidate those suits. So what we've done is we've merely facilitated
the consolidation proceeds. So this was nothing which was new. Now order 4 is the one which has invited a lot of comments, and that was the concept of administrative solutions. As my experience goes, a lot of time is wasted on something that ordinary clerks can do. Defendant number 1 is not served, issue fresh notice to him. But that takes time of the honorable judges. The time that they should be utilizing for something better. So what we tried to do was to create the posts of administrative judges, who will be seized of the matter till the case is ripe for recording of the. So we have segregated the trial into 2 portions. Firstly, where after the framing of issues, a particular judge will handle it, and then he will fix a date in coordination with the trial judge concerned and transfer the case for recording of evidence to a judge. The trial judge will of course start his day with the recording of evidence and the area of documents, so as to avoid the wastage of time. Order 5 was amended in a way that we postulated that copy of the claim and all the annexes should be transmitted along with the summons. इस पर बड़ी तनकीद हुई. We were told that this is unworkable and so on and so on. When we studied order 5, मैं आपको देता जाऊँ. ऑर्डर 5 रूल 2 है जी. ऑर्डर 5 रूल 2 मैं जनाब के सामने जो ओरिजिनल था वो पढ़ता हूँ. Every summons shall be accompanied by a copy to print, or if so permitted, by a consensus. This was already there, and perhaps neither of the honorable judges holding courts were ensuring that this provision is followed. Why? I'll come to that. So what we have done is, we have barely added one thing to it, and that is that not only the copy of the claim, but all its annexures must be sent along with this. अब जब इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, and even the rules committee is very divided. मैंने सबसे एक सवाल पूछा जो आपने जो आस्क किया कि समन तनकीद तलब का क्या मतलब है? Unfortunately, and I am not criticizing, you are all part of our system. We are together in this. 90% of the new incumbent judges don't even know what a summon tanqeed talab is. You see, summon tanqeed talab envisages that on the date given you will appear for framing of the issues. इसका मतलब ये है कि जब अंग्रेज ने इसको रिवाइज किया तो the idea was that before the date of appearance his written statement must be available on record. How do you ensure that? You can ensure that only by providing him with the entire material, so that there are no dates on the ground के लिए आप मुझे प्लेट की कॉपी नहीं मिली और आप जी मुझे प्लेट के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स दें. दूसरा एक प्रॉब्लम जिसका जाती तौर पर आई वाज वेरी वरीड अबाउट इज कि हमारी जो जुडिशियल फाइल्स हैं देयर इज नो साइंटिफिक तवक्कुर से वो एनएल की कोर्ट से फॉर फोटो कॉपीज दे दो आप एंड देयर इज अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट कि प्लेट के साथ जो लगा हुआ हमें कैसे पता चलेगा कि ये तो फोटो कॉपी. वो जो एक पुराना एक इंस्टीट्यूशन था फाइल इंस्पेक्शन का वो तो तकरीबन खत्म. तो ये ग्राउंड रियलिटीज है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. फोटोकॉपीज है क्रिएटेड रेवोल्यूशन. वरना तो कच्ची पेंसिल से होती थी फाइल इंस्पेक्शन सफेद कागज पर. वो इंग्लिश ब्रांच ही तरह लागू होता नहीं, वकीलों को नहीं पता कि इंग्लिश ब्रांच की होती है.
सिस्टम भी मेंटेन है जी, वो पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है, हाई न्यूज एंड ऑडियंस का प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। के लिए एप्लीकेशन जी, अब देखिए ये सारा कुछ खत्म है, लेकिन इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती कि फाइल बार बार बाहर जाए। देयर इज चांस ऑफ टैम्परिंग। लॉयर्स वी हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव टैम्पर्ड फाइल्स इन देयर पर्सनल मैटर्स। गुम हो जाती। आप फाइल किस तरह इजाजत दे सकता है कोई भी अच्छा जुडिशियल सिस्टम कि उनकी फाइल बिना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इट गोज आउट फॉर फोटोकॉपी, एंड देन यू फाइल फोटोकॉपी करने के लिए उसको खोलना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दिस? So what we have done is nothing. We have merely facilitated that every document that is attached to the plane, including Pata and Nisar, they must go to the other side in advance. I don't know why people are finding fault with this. But anyway, it's for you people to judge. You see, if we can adopt it. सर इसमें जब वो फाइलिंग होती है ना, तो जैसे ये लॉ है कि जितने डिफेंडेंट्स हैं उतनी प्लेन्स की कॉपीज लगी, लेकिन वो एक प्लेन की कॉपी लगती है, हमारे पास तो मार्किंग होकर फाइल आ जाती है, जाहिर नंबर लग जाते हैं। That is exactly where you people have to take charge. मैं अभी आपको बताऊंगा what we mean by proactive court. देखिए ये एलिमेंट जो है he is to follow your instructions. अगर एक एलिमेंट जब वो उसकी वो लिखता है वो कैफियत, वो अगर उसमें ये चीज़ें इंश्योर नहीं कर रहा, मैंने तो सजेस्ट किया था कि एक चेकलिस्ट बना लें, उस चेकलिस्ट पर काउंटर साइन होने चाहिए एलिमेंट के कि ये सारी चीज़ें आ गई। बट यू सी bars are reluctant to take active participation in the process. सर ये तो दायरे वाले का काम है कि वो देखें कि क्या चीज़ नहीं। सर इसमें ऐसे होना चाहिए, एक हाथ ऐसा होना चाहिए था, एक डिब्बे में भी अंग्रेजी तरह 100 सामान डाली जा रहे हैं, जो आए एक टाइम है सपोज 12 बजे तक, जो अगर 9 बजे की आती है उसकी स्क्रूटनी हो, अगर उसमें डेफिशिएंसी हो उसी तरह वो ऑफिस में टर्न कर दे। और ये डिब्बे में क्या मजाक है, कभी भी डब्बा पड़ा है। चलो अभी प्लेन पर आते हैं, समन्स तो इशू होने ना जब दावा इंटरेस्ट हो जाए। You see, अभी we'll come to the plane in a while and I'll explain to you what we've done here. But we are talking of summons right now. Summons says that the trial has been entrusted to an administrative judge and he is conducting the process of serving. उस वक्त कम से कम समन्स के साथ ये इंश्योर किया जाना जरूरी है that the copy of the entire claim goes with the suit. अब इसी तरह ऑर्डर 5 में what we have done is we have introduced, of course there is a penal clause कि अगर ये समन्स के साथ नहीं अटैच करेंगे then the suit will be dismissed, जो अदब करवाने वाला तो कॉन्सेप्ट है उसके तहत खारिज करवा दें। अब उसी तरह जो हमने ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था रूल 10 में, ये रूल 10A ऑफ ऑर्डर 5, ये सिर्फ ये कहता था कि रजिस्टर्ड पोस्ट साइमल्टेनियसली आपने जरूर भेजनी है। हमने what we have done is nothing new, we have just added the words courier in it, कि आप समन भेजेंगे प्लस रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेंगे प्लस कोरियर के थ्रू भेजेंगे। जी प्लीज। जो देहाती इलाके हैं सब देहाती इलाकों में कोरियर सर्विस, जी हमने उसी लिए यूएमएस लिखा। ये बड़ा पूरा पोस्ट ऑफिस से रिसर्च की गई थी, उन्होंने कहा था जी कोरियर सर्विस तो हर जगह नहीं अवेलेबल है, बट यूएमएस सर्विस जो अर्जेंट मेल सर्विस है पोस्ट ऑफिस की, they have told us that we cover 95% of the job. So and we actually the rules committee was minded to make a request to them कि जो बकाया 5% है प्लीज उसको भी करो। So इसीलिए यूएमएस का लफ्ज आपको हमारी डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा है। बात ये है कि we are here to critically examine why we were making this, and I am giving you the exact backdrop of why we were doing it. अब अगला सवाल रहता था कि ये बड़ा हार्श है। प्लीज सर फॉर एग्जांपल ए फाइल करता है सूट, उसमें अपना अगेंस्ट द बी लिखता है कि बी सन ऑफ फ्ला एंड रेजिडेंट ऑफ सोनाबाद, नॉट प्रॉपर प्रोसीजर इज अर्लियर लेड डाउन नाइदर सर सॉरी टू से, अभी भी इसके हवाले से कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं है। एड्रेसेस के हवाले से, एड्रेसेस के हवाले से देखिए बात सुने, बात ये है कि देयर इज ए कांसेप्ट ऑफ
less service. सर उसके मेरी सुन लीजिए, सर मैं लिटिगेशन का इंचार्ज या ओनर जो है वो प्लेज है. There is at one stage you can object to a lot of things, but at the initial filing of the suit, I don't think it will be advisable because वो तो वही झगड़ा शुरू हो जाएगा. इसीलिए इसका जो है इलाज दिया है वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में दिया है, चैप्टर वॉल्यूम 1 चैप्टर सी रूल 1 8 and 10. उसमें उन्होंने कहा 8 में कहा कि अगर ऐसी एड्रेस दी है जिसमें सर्विस नहीं हो सकती, आप इन शॉर्ट टर्म में इंक्वायरी करके उसे डायरेक्ट करेंगे कि इसकी ऐसा एड्रेस दिया जाए जहाँ पे सर्विस हो सके. अगर वहाँ पे वो नहीं देता तो आपका दावा इज लायबल टू बी डिसमिस. चलिए एफिडेविट ऑलरेडी सर्टिफिकेशन तो ऑलरेडी मौजूद है. चले I take a note of that, and if the High Court rules and orders say so, that there is no need for an amendment. किसी को बताइए नहीं पता होती है. देखिए हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर सर मैं तो बशमूल अपने तस्लीम कर रहा हूँ कि अभी आगे आगे चलते जाएं, यू बी सरप्राइज कि हम सब एक लाइनी का शिकार है. किसी ने कोर्ट को गौर से नहीं देखा. ये जैसे लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट में देख रहे हैं कि एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होनी है किसी के सामने. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम रिलैक्स होते गए. The early expedition disposal suits was probably not a priority anywhere. One of the side was running out of the delays, and we were all privy to that. So the whole concept of introducing these amendments is to, from within the CPC, what we are highlighting is ये already था, इसको करें. इसको करने के नतीजे ज़ाहिर है सामने आएंगे. इसी तरह ऑर्डर 7 रूल 9 1A has been added. 1A आगे 1A के आगे क्लॉज स्मॉल a लिखी है. जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उसमें ये लिखा हुआ था कि आप कॉपी ऑफ द प्लेन और प्लेन पेपर जितने डिफेंडेंट्स हैं उतनी कॉपीज देंगे. ये ऑलरेडी था. What we have done is हमने ये कहा कि नहीं न सिर्फ कॉपीज देंगे बल्कि उसके सारे एनेक्सेस भी देंगे और 2 एक्स्ट्रा कॉपीज देंगे. 2 एक्स्ट्रा कॉपीज तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में में ऑलरेडी था. So what we have done is nothing new. We have just added that plain means the entire plain that you have, so that the photocopy part of the album it goes out of business. ठीक है. अब इसी तरह आ जाए आपका जो रिसीविंग ऑफिसर ये आई एम वेरी श्योर कि ये इनिशियली होता होगा. नहीं होता. आई नो. मैं खुद आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम. आई नो कि नहीं होता. लेकिन जैसे COC साहब बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट साहब, उनका काम है देखना कि जो भी मेरे पास आ रही है. So all we need to do is designate 2 clerks to look into this. ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, उनका अमेंडमेंट से तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है ना. लेकिन आपकी बात दुरुस्त है एंड ऑफ कोर्स हाई कोर्ट विल हैव टू डू समथिंग. अब आ रही सर जैसे आजम साहब ने फरमाया ना कि वहाँ पे जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं वो एक उन्होंने टाइमिंग दी हुई है कि इस टाइम में आपकी ना डायरी होनी है, तो वहाँ जो उस पे स्टैंप लगा मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूँ कि ये हाई कोर्ट में भी वो बॉक्सेस आज भी पड़े. ठीक है. नहीं खत्म करने का के अलावा एक और तरीका होता ये है कि जब बॉक्सेस में आप पिटीशन डाल देते हो तो जब हाई कोर्ट का ऑफिस उनको निकालता है देयर इज एन ऑब्जेक्शन टू दैट, देन there is a list saying that your file has been visited with certain objections. Please remove these objections within 3 days. So there is no earthly reason why we can't introduce that system into. So देखिए पहली बात तो ये है कि हमें अपने आप के ऊपर बिलीफ क्रिएट करना है कि हम कर सकते हैं. The moment we start believing in ourselves and believing in the fact that a trial can conclude in 6 months,
we will start doing the right things. But these amendments were only brought about to facilitate an expeditious disposal of the sewage. रमेश, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। वहाँ तो लग सकता है और वो पावर भी है। जो ट्रायल कोर्ट है ना सिविल जज की, वहाँ पे जब वो डब्बा खुलता है तो 8 बजे आनी शुरू हो जाती है। अगर 8 बजे वो निकले डब्बे से, ये उसी वक्त ये वैसे ले ली जाए तो उसकी 8 बजे 10 मिनट तक स्क्रूटनी हो जाए। जब 100 फाइल इकट्ठी होती है 12 बजे वो सही पे वहाँ से निकलती है तो स्क्रूटनी हो ही नहीं सकती और वकील साहब का स्टे लेना होता है। वो उस वक्त तक उस बंदे को वो वहाँ सिचुएशन कोई हो गया। I have already conceded that this is something that the High Court will have to do, or the district judges will have to do. I.e., we can create. Why do we have a COC for the district judge and the senior sub judge is receiving the payment? एक ही ऑफिस क्रिएट कर दे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जो अपने टाइम पर जरूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी आज सिर्फ चूंकि हम CPC की अमेंडमेंट्स के ऊपर भी बात करें, थोड़ा सा उस पर लेंगे। Order 7 Rule 11A हमने ऐड किया है, which clearly says that no separate application for rejection to be made. Written statement में देना जी डिफेंस, written statement में डिफेंस ले रिजेक्शन ऑफ प्लेट को भी हमने बड़ा वो किया है, पावरफुल किया है कोर्ट्स को कि वो अगर कानून के मुताबिक नहीं है रिजेक्ट करना, लेकिन दी रिटन स्टेटमेंट मस्ट कम। और वो इसलिए जरूरी है कि रिटन स्टेटमेंट हम विजुअलाइज ये कर रहे हैं कि बिफोर इज अपीयरेंस इवन द रिटन स्टेटमेंट विल कम। और वो दो साल चलती है, 2 साल। सर अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आ रही और 711 की एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग से ऑर्डर किया जाता है कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें, जो अमेंडमेंट भी है, अगर वो फाइल नहीं करता तो क्या उससे ऑर्डर 30 डेज के बाद डिफेंस कर। लेकिन हमें अगेन ये आई एम सॉरी ये जजमेंट लॉज की वजह से रिलैक्सेशंस आए। ऑर्डर 8/10 के ऊपर जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि थी बड़ा रिडिकुलसली लास्ट डेट पे कहने से क्यों? You see, those times have gone. We are overworked. The whole system is choked. And there is no time for leniency anymore. Please understand. There is a time given for, tell me why it should not be complied with. There must be a reason. There can be an outside chance getting death only. I don't know. There can be earthquake. Obviously, we are all humans. I mean, we are ready to apply the law, but unless there are extraordinary circumstances, there is no leniency. बहुत सारे चीज़ भी आ सकती है कि 711 की एप्लीकेशन आई, उसके साथ कहते हैं इसको रिटर्न सब बता दें, सब्जेक्ट के जो written statement के जो requirements है वो पूरी नहीं होती है। What are the difference between Rule 1 and Rule 10? देखिए, let me explain. I know. देखिए बात ये है that is let's say a 711 application will not be given a serial wise answer to the allegation. वो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक legal objection raise कर रही होगी ना। That written statement will only be considered that he has nothing to say on facts, and he is merely relying on a legal jargon to get the suit dismissed. Fine. If he wants to live with that, we cannot force a party to definitely file a written statement. So let it be that. लेकिन बात ये है कि ये सारी जो है ना situations, I concede that these amendments, we are not superhumans. We are all humans. We have created these amendments with the view that they will work. If there is a problem, the Rules Committee is already sitting and deliberating about it. We actually wanted to test run these amendments in 3 districts. This was the idea. And there was a comprehensive plan to train the judges in those 3 districts, take the bar on board, and then run this system under the new amendments and see whether if there is a bottleneck, we can clear it. So we are already working on that. There is a Rule Committee meeting probably next week as well. We are doing a lot of things about it. Conclusion discussion को पूरा नहीं, उसमें हमने सिर्फ कसूर रखा था सेंट्रल पंजाब से, मुजफ्फरगढ़ रखा था from the south, and Jeddah from the Port of Maharashtra.
उसमें तो ट्रेनिंग भी होगी नहीं सर, हुआ ही नहीं। नोटिफिकेशन तो 2018 से आज तक हुआ ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज अफ्रेड दैट द बार्स विल रिटायर एंड again I think that this system should work in place। आप मेरे साथ अमेंडमेंट की लीगल पोजीशन पे कुछ भी ये इफेक्टिव नहीं है। सर इसमें एक रिक्वेस्ट सर, जितने डेयर एक्ट आ गए हैं मार्केट में उनको स्वागत किया जाए कि कॉन्फिस्केट किया जाए। और सर डेयर एक्ट आ गए हैं, बुक्स आ गई हैं, जिनमें लिखा हुआ है यस नहीं, तो ये लोग देखिए आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है नहीं वो ये जो आपने रजा साहब वाली सीपीसी है जी। उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि नोटिफाइड और सच हाँ जी और नॉट। मैं थोड़ा सर्च कर दूँ कि ये हुआ सर प्रैक्टिकली थोड़ा सा बात करनी जो अंडरस्टैंडिंग की अमेंडमेंट हुआ है ना, प्रैक्टिकली रिटन स्टेटमेंट में ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट हैज टेकन दिस ऑब्जेक्शन ऑफ 711, तो हम उसको प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ट्रीट करते हुए करें इशू लगाएं इसको पर इशू लगा के उसको इश्यूज की तो बात नहीं है ना सर, इश्यूज तो आपने लगाना है को फैक्चुअल कंट्रोवर्सी। देखिए the moment there is a written statement, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। If you really feel that a plaintiff does not disclose the cause of action और इस बात का सवाल, then there is nothing which prevents you from proceeding with it. You understand that the rejection of the plaintiff by itself does not bar a subsequent suit. ठीक है? अगर आप समझते हैं उसमें भी तो है ना सर, वो सारी चीजें लाइक करती वो आप आर्डर सहमत हो 13 में मैट हो गया जी। मैं उसी पे जा रहा हूं। उसमें सर बाढ़ में लगा आपने पूरे डिटेल करके सब्सिक्वेंट सूट बाढ़ हो गया जी। वो यही ये मिसनॉमर था ना। अगर आप 711 की पुराने 711 की लैंग्वेज देखें और 713 की लैंग्वेज देखें तो वो दावा बाढ़ तो नहीं हो रहा। उसने लिखा जी मैंने दावा किया था, उसमें दरखास्त मेरा दावा मुस्तरद हो गया, मैंने न्याय कर दिया। 713 में उसको इजाजत है इस चीज की। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव अमेंडेड 713 and we have added a few words in it कि जी per se by in itself the rejection of the plaintiff will not bar a subsequent suit, but if there is a finding of conclusive nature in the by rejecting the claim then the subsequent suit too is barred। तो वो हो गया। अब जनाब आ जाइएगा ऑर्डर 8। सर हम इनको पढ़ते रहे जब इनके तक लीगल पोजीशन में सर जी वो लीगल पोजीशन तो इसकी ये है कि ये किसी दिन भी लागू हो और अब ये भी विजुअलाइज किया जा रहा है। आई डोंट नो बट इट इज फॉर द हाई कोर्ट टू डिसाइड कि शायद आप लोगों पर इसको कमर्शियल कोर्ट्स पर फौरी तौर पर इसको लागू करें ताकि हम इसको इस तरह से टेस्ट करें। सर जो 2020 में अमेंडमेंट्स आई हैं जो सेक्शन 26 वो तो सीपीसी की अमेंडमेंट है ना, वो तो गवर्नमेंट के लेवल पर है। वो देखिए जो शेड्यूल अमेंड कर सकती है हाई कोर्ट, जो सब्सटैंटिव कोड है वो तो लेजिस्लेचर ही अमेंड कर सकती है। तो वो जब ये रूल्स बन गए तो फेडरल गवर्नमेंट में भी दे राष्ट्र एंड क्रिएटेड सर्टेन अमेंडमेंट्स और पंजाब गवर्नमेंट में भी उसको फॉलो किया। एंड आई कैन से लॉट अबाउट दोज अमेंडमेंट्स। वो ज़रा देखिएगा किसी वक्त, तो म्यूचुअली कंड्यूसिव नहीं है, उनको भी ठीक करना शायद। लेकिन वो दैट गोज विदाउट सेइंग दैट इज समथिंग दैट इज नॉट आवर बेबी, इट इज फॉर द appropriate legislature to look into that। अगर पास किया है कानून में क्या कर सकते हैं? ओवरलैपिंग शुरू में सेक्शंस में सेक्शंस में किए हैं, रिविजन खत्म कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यार से बड़ा हम फैसिनेटेड हैं तो इस पर भी आ जाते हैं। वो बहुत कुछ हुआ है। ओवरलैप ये सब कंफ्यूजन नहीं हो गया रीडर के लिए। वो सारी अमेंडमेंट्स एक्ट में भी आ गई हैं। देखिए ये नहीं हुई, असल में ओवरलैप नहीं कर रही है। असल में होता ये है कि जब एक रूल्स कमेटी काम कर रही होती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। उस वक्त प्लान ये किया जा रहा था कि 1000 किताबें विद द amendments will be printed and provided to each judicial officer ताकि आपके पास ऑफिशियल टेक्स्ट हो। और ये शायद हाईकोर्ट करेगी भी, आई बिलीव दे विल, ताकि आप इन किताबों से कंफ्यूज ना हो। लेकिन वो जब भी होगा बहुत सारे फैसले मेरे पास नहीं करने के लिए, लेकिन आई एम श्योर कि वो होगा।
So that was visualized, they work started on that, then Justice Anil Khan, who was the president of the Ethics Committee, he was elevated to the Supreme Court, so उसके बाद से थोड़ा सा मामला रुक गए हैं. Now a new rules committee is in order. Probably meeting next week we will decide on that. Let's finish with this because that's what exactly what I am saying. Order 8 rule 1 में हमने फिर यही कहा है कि रिटन स्टेटमेंट के साथ भी जितने एनेक्सेस हैं वो कॉपीज वो जमा करवाएगा कोर्ट में फॉर हैंडिंग ओवर टू द प्रिंटर. The whole concept is that we do not want the file to go out for photocopies, and I think that's a good idea. ठीक है जी. उसके बाद होगा जी वर्ड ऑर्डिनरीली है रूल 1 में. Shall not ordinarily exceed 30 days. ठीक हो गया जी. सर ये ऑर्डिनरली यहाँ पे भी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के हवाले से आया है. नहीं यू टॉकिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 30 डेज. 30 डेज में जनाब की जजमेंट है, जनाब की असिस्टेंट जी. मैं अब थोड़ा सा अर्ज करूँ. इसका सब रूल 2 जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है ऑर्डर 8 रूल 1 का सब रूल 2. रूल जनाब की तरफ से The court may, for just and sufficient reasons shown by the defendant in his application supported by an affidavit, allow the defendant to file written statement even beyond the period specified in sub rule 1, but shall not exceed 30 days in all. Shall be or not be ये जज रहे But in any way ऊपर भी shall हो गया हुआ है. Order 8 rule 1 भी met हो गया हुआ है. जीशान साहब ऑर्डर 8 रूल 1 भी met हो गया है. अमेंड हो गया सर. जी मैं पढ़ लिया. मेहरबानी सर. थैंक यू. और हमने उसके अंदर भी वो अच्छा वो ऑलरेडी अमेंडमेंट्स एग्जिस्ट करती थी कि जी 2 अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा मिलेगा वो ऑलरेडी था. उसको भी हमने मजीद एम्फसाइज कर दिया. ऑर्डर 8 रूल सब 13 जो है उसको हमने सूटेबली अमेंड कर दिया कि 30 दिन से ऊपर ये जा ही नहीं सकता. And the court is bound to strike off the defense if the 30 days period expires. अब है Rule 9A, which is actually the center of debate. That is the case management. अब विजन ये है विजन पर आपको पढ़ना है. विजन ये है कि समझ गए रिटन स्टेटमेंट आ गया, जज साहब ने इश्यूज फ्रेम किया. ठीक है. दिस इज वेयर आई से टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट हैज बीन सेइंग ये मुर्गों की लड़ाई नहीं हो रही कि 2 मुर्गे लड़ रहे हैं, एक जुडिशियल ऑफिसर बैठा देख रहा है, दोनों में से जो मुर्गा जीत गया उसको जीता हुआ दिख रहा है. You have to take a proactive role. Proactive role में ये है कि 9A pleadings of court में आ गई, उसके बाद आपने डिस्कवरी करवानी है. I am sorry I am running out of time, therefore I am rushing it. डिस्कवरी करवानी है, इंस्पेक्शन के सारा प्रोसीजर करना है, इंटरोगेटरीज आपने एक्सचेंज करवानी है लाजिम. ये अब हमने लाजिम कर दिया. 11, 12 और जो है 10. This has been rendered mandatory. और these procedures करोड़ों रुपए से कम नहीं, तो उसका क्या इलाज है? People have gone more greedy. We have to look after the system. So अब इसी तरह चलते जाएं आप. I am skipping rule 21. उसको देखिएगा जरूर. Please wait your parts. Order 13. जी इंजेक्शंस के मुताबिक आई बिलीव ये डन समथिंग. इससे पहले ऑर्डर 38 में हमने अमेंडमेंट्स की. First thing that we have done is कि जो भी डिफेंडेंट आपके पास आएगा, you will call upon him necessarily to furnish security for compliance with it. अच्छा ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये ऑर्डर 38 में ये प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हमने उसको शेयर कर दिया. तो डिफेंडेंट को पता चल गया कि मेरे खिलाफ जो भी डिग्री होगी इसमें इम्प्लीमेंट होगा. That is where the trouble will end. Because people are not afraid of the system. People are not afraid of civil courts. People are not afraid of the degree that is likely to
पास होगी, डरता ही कोई। तो जो ऐसा माशरा बन जाएगा उसको क्या होगा? क्लॉज है उसका डिफेंस राइट और होगा, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है। हमारे सारी चीजें मौजूद हैं। मैंने 17 साल बाद प्रोविजन पढ़ी जो मैंने कंपोजिशन बताई कि एविडेंस मौजूद है, वो कहता मैं नहीं कराऊंगा विदाउट एनी गुड का। उसमें इतनी खतरनाक प्रोविजन है 16B आर्डर 16 रूल जो 20 रूल है, उसमें कहा गया है कि देयर एंड देन उसके खिलाफ जज कर देना। और इस पे मैंने अपील अपहेड कर दी। ढाका की एक 1964 में ये एक जजमेंट आई थी ढाका, उसके बाद कभी 16-20 लगी नहीं पूरे पाकिस्तान में। फिर मैंने कहा इस पे लाभ आ जाए। अब हाई कोर्ट पैंडिंग है सर इसमें एक चीज़ जो शायद मिस हो रही है, अमेंडमेंट्स इसमें है प्रपोज है या जो अमेंडमेंट्स हो रही है, अच्छी बात है, स्पीडी कंक्लूजन के लिए सारा जरूरी है। लेकिन एक चीज़ जो मिस हो रही है कि मतलब जितने भी स्टेप्स हैं हम टाइम बाउंड कर रहे हैं इन अमेंडमेंट्स के साथ, लेकिन क्या उसमें जो नंबर ऑफ जजेस या एक जज के पास कितने केसेस हैं, एक दिन में उसकी रेट्स बिकॉज लिस्ट है तो भी सारी ये काम पर टाइम बाउंड प्रोसीजर्स हैं। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। देखिए आप फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तक आपका हेडेक ही। वी विल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस सुबह से लेकर शाम तक यही काम। We will have a revamped process serving agency। देखिए आप बड़ी स्ट्रेंज एग्जांपल है, आप बैंकिंग कोर्स की पहले दिन अखबार से हर चीज है, वहाँ हर बंदा टाइम पर पेश हो जाए। क्यों? This means the system was not in the process serving agency. The problem was with the people who could avoid appearance in courts। यहाँ तो 2-2 साल सर्विस ही नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो ट्रायल जज है उसको हम ये दे रहे हैं कि आपने जो ट्रायल शुरू करना है वो 2-3 दिन के अंदर कंटिन्यूस ट्रायल है, ठीक है। अब आप अपना कैलेंडर इस तरह रेगुलेट नहीं करेंगे कि आपने 200 केस लगाया। वहाँ पे कोई हमारे एंड से क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 2 दिन की हमें पेशी दें, 2 दिन से ज़्यादा हमें पेशी नहीं लेनी है, 3 दिन से ज़्यादा हमने ये बात के बारों में मुकदमा लड़ते हैं, ये बात की जरूरत है, ठीक है। तो होगा क्या? होगा ये ऑब्वियसली हाई कोर्ट विल हैव टू स्टैंड राइट नेक्स्ट टू द सॉल्यूशन। नंबर 2 कि हाई कोर्ट विल हैव टू इंश्योर कि आप अगर वो नहीं करवा रहे या लंबी तारीख मांग रहे हैं, आपने नहीं देनी, आपको इजाजत ही नहीं है कैलेंडर, ठीक है ना। आपको तो कानून कहता है कि अगर एविडेंस शुरू होगी तो डे टू डे चलेगी। सो एडजर्नमेंट इज समथिंग दैट इज नॉट कंसीव्ड ऑफ इन द न्यू सिस्टम। पहले आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर।